Assalamu alaikum, my dear students. Today in this video we are going to discuss about a new topic, that's impulse and practical applications of second law of motion. We have studied first law and then second law. The mathematical form of second law is F is equal to ma. Okay? F is equal to ma. Force is equal to product of mass times acceleration. And we also said that the first law is contained in the second law. We can deduce the first law in the second law, or the first law is contained in the second law. So here I will talk about the another kind of force, which is a special kind of force. I can say that's impulse. हम फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए देन एम एंड ए की जगह हम लिख सकते हैं वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी because a acceleration is change in rate of change of velocity. Okay, rate of change of velocity. So I can write it as m multiplied by v minus u divided by t. सो इस टी को अगर मैं लेफ्ट साइड ले लूँ, दिस इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. ओके, एफ टी माइनस एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. सो अगर आपको याद है एम वी दिस इज फाइनल मोमेंटम. ओके, फाइनल मोमेंटम एंड एम यू इज इनिशियल मोमेंटम. So Ft जो है this is the product of force multiplied by time. So Ft is called impulse. Okay, Ft is impulse, product of force multiplied by time. और in other words अगर मैं impulse को define करूँ, impulse will be when a large force acts on a body for a very short duration of time. Okay, large force acts on a body for a very short duration of time, that's called impulse. So then this large force is called impulsive force. Okay, so जब एक बॉडी पे एक लार्ज फोर्स एक्ट करता है लेकिन वो लार्ज फोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्ट करना चाहिए, that special type of force will be called impulse. Okay, and that force will be called impulsive force. Okay, the impulsive force thus is defined as the change in momentum. तो impulsive force को हम ऐसे भी define कर सकते हैं, it is change in momentum. Okay, change in momentum is defined as impulsive force. So impulsive force को हम simply कह सकते हैं कि it when a large force acts on a body for a very short duration of time, then this large force is called impulsive force. तो अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई impulsive force जो है ये दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. सो द यूनिट्स विल बी फोर्स का जो यूनिट है दैट्स न्यूटन. ओके, न्यूटन. और टाइम का जो यूनिट है, टाइम का यूनिट सिंपली सेकंड है. सो दिस इज न्यूटन सेकंड. और दूसरा यूनिट जिसका है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड. ये इसका जो है दूसरा यूनिट है. ओके, now let me discuss about the practical applications of second law of motion. तो second law of motion के practical applications क्या है? okay? अगर आप यहाँ पे देखो कि जो second law है this is F is equal to ma which is also equal to F is equal to m multiplied by v minus u divided by t. तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, ये जो t है ये डिवाइड में है. okay? T is in divide. So we can say that अगर यहाँ पे T increase होता है, टाइम अगर डिवाइड में इंक्रीज होगा तो यहाँ पे फोर्स जो है ये डिक्रीज होगा. ओके, बिकॉज अगर यहाँ पे डिवाइड में कोई चीज़
इंक्रीज़ होती है तो वो जो क्वांटिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो यहाँ पे अगर टी इंक्रीज़ होता है तो फोर्स डिक्रीज़ होता है, और अगर टी यहाँ पे डिक्रीज़ होगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ को पकड़ने में या किसी चीज़ को रोकने में या किसी चीज़ को जो है मोशन में लाने में अगर आपको टाइम लगता है, ओके, तो वहाँ पे फोर्स जो है रिड्यूस होगा। और अगर आपको कम टाइम लगता है उसमें या रोकने में या मोशन में लाने के लिए, तो वहाँ पे फोर्स जो है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। आई कैन गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। cricket ball player lowers his hand while catching the ball. आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट प्लेयर जब वो कैच कर लेता है बॉल को, तो वो अपने हैंड्स को लोअर करता है। okay? ऐसा कभी किसी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ने कभी ऐसा कैच नहीं पकड़ा हो कि उसने जो है अपना हाथ बस एक ही जगह रखा हो। नो, ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स। वो अपना हैंड जो है बैकवर्ड पुल करता है जब वो कैच करता है। सो व्हाई इज सो? Because by doing this, he increased the time interval during which the high velocity of the ball reduced to zero. ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपना जो है टाइम इंटरवल वहाँ पे इंक्रीज करता है कि उस बॉल को रोकने के लिए। तो जितना वो टाइम इंटरवल इंक्रीज करेगा उस बॉल का जो फोर्स है उस पे कम लगेगा, यानी कि वहाँ पे वो हर्ट नहीं होगा। ओके, तो जितना जितना वो टाइम इंक्रीज करेगा, जितना वो अपना वो हैंड है बैकवर्ड पुल करेगा, सो ही विल बी नॉट हर्टेड मच। वो वहाँ पे ज़्यादा हर्ट नहीं होगा क्योंकि फोर्स रिड्यूस होगा। तो उस रिडक्शन ऑफ फोर्स की वजह से वहाँ पे इसकी इंजरी के चांसेस बहुत कम है। तो आपने देखा होगा जब किसी प्लेयर पे अचानक बॉल लगती है किसी भी जगह या हाथ पे या किसी और चीज़ पे, तो वो वहाँ पे जल्दी हर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे उसको मौका नहीं मिलता है कि वो अपना जो है टाइम इंटरवल इंक्रीज़ करे, क्योंकि वो अचानक से लगती है। तो उसको वहाँ पे मौका नहीं मिलता है कि वो अपने अपने हाथ को या अपने पैर को जो है बैकवर्ड पुश करे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो फोर्स है वो that force is large force but within the short interval of time, वो short interval of time में वो उसका जो force है उस पे लगता है। तो that force will be called impulsive force, यानी कि वहाँ पे उसे वो impulsive force जो है hurt करता है। That is because क्योंकि वहाँ पे उसका टाइम इंटरवल जो है कम होता है। ओके, तो उस कम टाइम इंटरवल में उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है। So that's why the player gets hurted. एंड द सेकंड एग्जांपल विल बी कि जब हाई जंपर, आपने देखा होगा कि हाई जंपर एथलीट्स इवेंट्स में जब वो हाई जंप लगाता है तो जब वो फॉल करता है कि दूसरी साइड से, या तो वहाँ पे एक क्वेश्चन लगा होता है जिसको हम तकिया कहते हैं, या वहाँ पे सैंड वगैरह कुछ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिस पे वो आराम से जो है फॉल करे, यानी कि जिस पे वो हर्ट ना हो। ऐसा इसलिए व्हाई इज दिस डन? दिस इज डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू ज़ीरो वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग द जंप, क्योंकि उसे जो है वेलोसिटी ज़ीरो बनानी है अपनी। जब वो स्टॉप करेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो उस वेलोसिटी को ज़ीरो बनाने में वहाँ पे अगर जितना टाइम उसको लगेगा उस वेलोसिटी को ज़ीरो बनाने में, उतना जो है उस पर फोर्स कम लगेगा, यानी कि ग्राउंड का फोर्स जो है कम पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे भी उसके हर्ट होने के चांसेस, इंजरी होने के चांसेस कम है। और आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे सरफेस जो है हार्ड है या रफ़ है, कोई सैंड या कुशन लगा हुआ नहीं है, तो वो जल्दी हर्ट होगा।
क्योंकि वहाँ पे वो जो है इम्पल्सिव फोर्स लगता है। वहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़ीरो करने के लिए टाइम जो है वो टाइम कम लगता है, जिसकी वजह से इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करता है। सो दैट इम्पल्सिव फोर्स देन injures a person or hurts a person. So this is the second example, that we put the sand or something soft to fall the athlete on the other side. So this is done to increase the time of athletes fall to zero velocity after making the jump. So this decrease the rate of change of momentum. ये decrease क्या करता है? ये rate of change of momentum जो है ये डिक्रीज़ करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इससे डिक्रीज़ होता है इस टाइम इंटरवल की वजह से। ये जितना जो टाइम इंटरवल इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही डिक्रीज़ होगा। सो द फोर्स एंड हेंस द फोर्स, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि फोर्स डिक्रीज़ होगा। कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज़ होगा उतना फोर्स डिक्रीज़ होगा। सो एज अ रिजल्ट द एथलीट डज नॉट गेट द इंजर्ड। एंड थर्ड एग्जांपल आपने देखा होगा कि कराटर ना, कराटी प्लेयर या कराटी मास्टर, he can break a pile of tiles or a slab of ice with a single blow. Why is this? Because he strikes it very fast. Okay, वो उसको strike करता है very fast, and in this process produce a large momentum of his hand. तो वहाँ पे वो अपने हैंड का जो है एक लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, एंड हिज हैंड विच इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और वो जो मोमेंटम है उस हैंड का जो मोमेंटम है वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ज़ीरो से रिड्यूस होता है, ज़ीरो पे रिड्यूस होता है। एंड इन दिस वे, और आई कैन से इन अदर वर्ड्स, वहाँ पे वो जो है एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेता है, ठीक है ना, वो जो है एक जो है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेता है, जिसकी वजह से उसका फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, तो जितना इंटरवल या जितना टाइम शॉर्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना फोर्स इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, उतना फोर्स जो है इंक्रीज़ होता जाएगा। सो कराटर क्या कहता है, या कराटे मास्टर क्या करता है, वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उन टाइल्स पे या किसी ग्लास आइस स्लैब आइस पे वो अपना जो फोर्स है एक्ट करता है विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस increase the force. So this exerts a large force on a pile of tiles, thus breaking it. So this force is called the impulsive force. यही वो impulsive force है जो ये कराटर या कराटी मास्टर एक्ट करता है। So there are also the other examples which can be given. सो आप जो है खुद अब सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ पे जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है एप्लीकेबल है।